Yes, beta. Question is, a truck starts from rest. Yes, U is equal to 0. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. It covers a distance of 400 meters in time taken to cover this distance by the truck is 20 seconds. How much time is taken? 20 seconds. Find its acceleration, find the force acting on it. तो बेटे पूछ रहा हूँ इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी वो भी फाइंड करो, और इस ट्रक के ऊपर फोर्स कितनी लगी होगी वो भी फाइंड करो. If the mass is 7 metric ton and mass of the truck is given 7 metric tons, okay, 1 ton होता है 1000 kilometers, so therefore it is equal to 7 into 1000 is equal to 7000 kilogram. So beta ji, now what are the equations of motion we have? We have equation of motion V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and V square minus U square is equal to 2AS. Also, according to second law of motion, we know force is equal to mass into acceleration. From here, we can derive mass is equal to force upon acceleration. From the same formula, we can derive acceleration is equal to force upon mass. So therefore, in order to find the force, we need force is equal to mass into acceleration. Mass is given, but acceleration is not given. So therefore, using this formula, we know that S is equal to UT plus half AT square. What is the value of S? 400. U is equal to 0, T is equal to 20 plus half into A into 20 square. Okay. So therefore, it is equal to what? 400 is equal to 1 by 2 A into 400. Because 20 का स्क्वायर कितना होगा 400. तो बेटे 400 से 400 कैंसिल हो गया, A to 2 इधर आ गया. ओके. So therefore, acceleration is equal to 2 meter per second square. Acceleration is equal to 2 meter per second square. Therefore, अब acceleration हमारे पास आ गई है. Therefore, force acting on the truck is equal to mass of the truck into its acceleration. So therefore, it is equal to 7000 into acceleration कितनी है बेटा 2 meter per second. So therefore, force acting on the truck is equal to 14,000 Newton. How much force is this? 14,000 Newton. और अगर आपने इसको बेटे डायन में कन्वर्ट करना हो, ये आपने लिखना इन SI यूनिट्स. ओके. अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्ट इट इनटू डायन्स, then force is equal to 14,000 into 10 raised to power 5 Dian into 10 raised to power 5 Dian. So therefore, it is equal to what? 10 raised to power 5 ही हो गए बेटे 3 हो गए ना. So you can say it is equal to 14 into 10 raised to power 8 Dian, or you can say force is equal to सर आपने फोर्स इक्वल्स टू 14,000 न्यूटन के बाद वो लाइन डाल के क्या लिखा है? SI यूनिट बेटे, बड़े वाला यूनिट SI यूनिट, और ये CGS यूनिट है ना डायन, और इट इज इक्वल टू 1.4 into 10 raised to power 9 Dian. Okay.
1.4 into 10 raised to power 9 डायन। आपने तो वैसे यही था कि करना है, आपसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले मान लो सपोज करो के, देन यू विल राइट बिकॉज, आपने लिखना बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डायन। ओके बेटा जी, एनी क्वेरी? यस स्टूडेंट्स। So see question number next. Yes. हाँ जी बेटा, मोक्स रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्स तनेजा। A stone of one Sir, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters a second across the frozen surface of a lake and ओके comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between stone and ice? यस बेटे, ये कह रहा है स्टोन ऑफ मास, मास इज इक्वल टू हाउ मच, 1 किलोग्राम, उसको थ्रो किया बेटे विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड। एक लेक थी जो जमी हुई थी, ओके, जैसे सर्दियों में देखा होगा आपने कश्मीर में डल लेक जम जाती है, ओके, तो उसके ऊपर बंदे ने 1 केजी का स्टोन किया, थ्रो किया बिल्कुल सरफेस के ऊपर पैरेलल, ओके। तो जब वो सरफेस के ऊपर स्टोन चला तो सरफेस और स्टोन के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुई है ना, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से स्टोन आफ्टर 50 मीटर वो क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, ओके। सो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वो 50 मीटर एंड फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, ओके। ट्रैवलिंग रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सो देयरफॉर यस बेटा, we need first of all we know F is equal to mass into acceleration, force is equal to mass into acceleration। अब फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मास तो हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन है नहीं, तो therefore we know that v square minus u square is equal to 2as, v is equal to 0 square minus 20 square is equal to 2 into a into 50 minus 400 is equal to 100a, or it implies a is equal to minus 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, राइट डाउन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, negative sign indicates that motion of the stone is retarded, motion of the stone is retarded, therefore force is equal to mass into acceleration, mass is equal to 1, acceleration कितना आ गया -4, so therefore it is equal to -4 Newton, okay, force is equal to -4 Newton। अब it is के नीचे भी लिखेंगे, the negative sign here indicates that, write down students, the negative sign here indicates that force of friction on the stone, force of friction on the stone acts in a direction, acts in a direction opposite to the direction, opposite to the direction of motion of the stone, of the stone। Yes today आर्स सूप, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आर्स रीड करो, आर्स।
Yes, sir. रीड करो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन. A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the accelerating force and the acceleration of the train. और थर्ड वन, थर्ड ऑप्शन भी है बेटा. Sir, third near two. Sir, two ही parts हैं sir 8 के. थर्ड भी है, लिख ले इसको. थर्ड है द फोर्स ऑफ वैगन 1 सर ऑन ए वैगन. दो ही है. 2 ही है. नहीं थर्ड भी है बेटे. सर थर्ड दो ही नहीं हुए सर मेरी बुक में अभी सर दो ही है. 2 ही है. सर यस 2 ही है. बेटे मैं कह रहा हूँ ना, यू राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सी पार्ट. राइट डाउन द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. देखना बेटे बड़े ध्यान से. देखो बेटा ट्रेन है आपकी, है ना. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये तो आपका आ गया इंजन. इंजन का उसने वेट दे रखा, कितना मास? 8,000 किलोग्राम. दिस इज वैगन नंबर 1, दिस इज वैगन नंबर 2, दिस इज वैगन नंबर 3, दिस इज वैगन नंबर 4, दिस इज वैगन नंबर 5. और हर एक वैगन का जो मास है वो कितना बेटा? वो शाबाश 2000 किलोग्राम ईच. ओके, so what is the total mass of the train? Yes, 18,000 kg. plus 2000 into 5, so it is called what? 18,000 kg. किलोग्राम. ओके, अब बेटे देखना, ये जो ट्रेन का इंजन है इसने आगे को फोर्स लगा रखी है कितनी? 40,000 न्यूटन. लेकिन जो पटरी, इसकी पटरी जो है, ट्रेन जो है, रेल का नीचे रेल और व्हील्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, तो वो हमेशा ही उल्टी होती है. तो बैक साइड को है कितनी? दैट इज कॉल्ड 5000 न्यूटन. इंजन ने जो फोर्स लगा रखी है वो टोटल फोर्स कितनी लगा रखी है? 40,000 न्यूटन. लेकिन उसमें से 5000 न्यूटन जो फोर्स है वो वेस्ट हो जा रही है फ्रिक्शन की वजह से. ओके, व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कितनी हो गई बेटे? 40,000 minus 5,000. 5000 is equal to 35,000 न्यूटन. नेट फोर्स कितनी हो गई? रह गई यस 35,000 न्यूटन. एक क्वेश्चन नंबर 1 था आपका. अब बेटे सेकंड कह रहा हूं एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. So what is net force? 35,000 upon what is total mass? 18,000. So it is equal to 1.944 meter per second square. This is question number 2. This is question number 2. 1.9444 meter per second square. Okay. Okay बेटा जी. तो पूरी की पूरी जो ट्रेन है इसी एक्सेलरेशन पे चलेगी. यस, पूरी की पूरी जो ट्रेन है इसी एक्सेलरेशन से चलेगी. लेकिन देखना, जब वैगन नंबर 1 है वो वैगन नंबर 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो क्या ये फोर्स 2 के ऊपर लगेगी या 3, 4 और 5 के ऊपर भी लगेगी? यस सर 3, 4, 5 पे भी लगेगी. हाँ, तो मतलब कि वैगन नंबर 1 है, ये टोटल कितनी मास को पुल करेगा? 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, कितनी मास को पुल करेगा? 8,000. ओके, सो देयरफॉर क्वेश्चन का पार्ट 3, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज इक्वल टू मास ऑफ वैगन 2 प्लस
mass of wagon 3 plus mass of wagon 4 plus mass of wagon 5 into acceleration. तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8000 2000 2000 2000 इज ओके 8000 into acceleration कितना 1.944 okay. So therefore it will come out to equal to 15,555.55 or it is nearly equal to 15,556 Newton. Force of wagon 1 on wagon 2. ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था आपसे पे. Yes बेटा, any query? सर 15 के बाद कॉमा है कि पॉइंट है? ए सर यस 15,000 है बेटा 15,556. ओके पॉइंट इतना नीचे नहीं होता ना. एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर वो आपने लास्ट जो 15,556 न्यूटन के आगे कौन सा साइन लगाया है? ए सर यस. तो बोल देते हैं बेटे नियरली इक्वल टू है ना यार. इक्वल टू लिख लो, कोई टेंशन नहीं लगवागा ना. इज इक्वल टू क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया ना मैंने. ओके ओके सर. हाँ यस बेटे. Who will read the next question? Yes. Who will read the next question? बेटे मोक्ष आप रीड कर लो. शाबाश. अब मेरे को नाम तो आते हैं बच्चों के. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meters square? हाँ बेटे given okay. Mass of the vehicle is given how much? 1500 किलोग्राम और एक्सीलरेशन के दे रखा है नेगेटिव है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स कितनी आएगी? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इज इक्वल टू व्हाट 1500 इनटू एक्सीलरेशन की जगह -1.7. सो इट इज इक्वल टू -2550 न्यूटन. ओके. अब यहाँ पे फिर माइनस साइन आ गया. सो राइट डाउन. यस बेटा राइट डाउन. The negative sign here indicates that the negative sign indicates that force of friction and applied force of friction and applied force of friction and applied force are opposite to each other. Yesterday, next question number 9. What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? Yesterday, कौन सी ऑप्शन होगी? सर डी ऑप्शन. D option. D बेटे yes ऑप्शन होगी D because momentum is equal to mass into velocity. So ऑप्शन कौन सी होगी? D. Yes बेटे. मोक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर दो बेटा. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? ओके. सो देखो बेटे अब वुडन का ब्लॉक है. ओके. और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है मैंने दैट इज 200 न्यूटन.
और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, एंड मैं चाहता हूं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो उतनी रहे, मीन u इक्वल टू v। जब u इक्वल टू v होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ओके, सो देयरफॉर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगानी पड़ेगी वो भी कितनी होनी चाहिए, 200 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो जब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस कर जाएंगी, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, 0। राइट डाउन, डायग्राम डालो बेटे, पहले फिर लिखवाता हूं मैं। यस, एफ ए का मतलब हो गया अप्लाइड फोर्स एंड एफ एफ का मतलब हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अरे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लो बेटा, यस, अच्छी बात है, ड्रॉ हो जाए। अरे ड्रॉ करना है कॉपी जी में। सर जी, मैं और क्या कह रहा हूं, यस, राइट डाउन as shown in the figure above। सर जी, सर वहाँ पे u इज इक्वल टू v लिखा के u। और आपको कैसा लग रहा है बेटा, u इक्वल टू v नहीं लग रहा है, तभी एक्सलेशन 0 होगा ना। ओके, यस write down as shown in the figure above, both applied force and force of friction, both applied force and force of friction are acting in opposite directions, in opposite directions with same magnitude, with same magnitude. Therefore the net balanced force is 0. Therefore the net force on the body is 0. Hence, according to second law of motion, hence according to second law of motion, according to second law of motion, if force is equal to 0, we know acceleration is equal to force net upon mass। अब जब नेट फोर्स 0 हो गई, so it is equal to 0 upon mass, so therefore acceleration is equal to 0, therefore acceleration is equal to 0। फिर आपने इफ के बाद क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इफ। we know acceleration is equal to force upon mass, और नेट फोर्स तो देखो 200 इधर को है, 200 को, तो नेट फोर्स 0 भी है ना, बैलेंस करके फोर्स ही, तो 0 अपॉन मास, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यस बेटे, सेकंड लॉ का यही तक था, अब हम आगे कर लेते हैं, आ जाओ आगे। राइट डाउन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गोमती मैम प्लीज जो करते फॉर्म चेयर, गोमती मैम। यस सर। जी सर, यस सर। बेटा जी मैम गूगल फॉर्म कर रहे हैं, अटेंडेंस का शेयर, इसको जल्दी फिल करो। डन सर। यस, थैंक यू मैम। बेटा जी डन।
Yes, sir. Okay. Write down routine Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. It states that to every action there is always to every action there is always an equal and opposite reaction. To every action there is always equal and opposite reaction. ओके देखो बेटा जी, टू बहुत जरूरी है लगाना। ओके, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं टू को हटा के अपनी मर्जी फॉर एवरी एक्शन। ओके, वो गलत है बेटा। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ देखो बेटा, हियर इज अ टेबल एंड अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। सो वेट ऑफ द बुक जो है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट कितना है इसका? mg। ओके, ये जो इसका वेट है इसको बोलते हैं हम एक्शन। अब जो टेबल की जो टॉप है, टेबल की टॉप जो है वो बुक को ऊपर को धक्का मारती है, इसके बिल्कुल अपोजिट ऊपर को। ओके, दैट इज रिएक्शन। ओके, इसको बोलेंगे हम रिएक्शन। अब देखो, रिएक्शन जो होगा उतना होगा जितना वेट होगा, ज्यादा होगा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो रखते बुक उठ जाएगी ऊपर को, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ओके, तो देयरफॉर weight is equal to minus r. Weight is equal to minus r or mg is equal to minus r or action is equal to minus reaction. Action is equal to minus reaction. Okay. Action is equal to minus reaction. Yes, beta, write down examples of third law of motion. Examples of third law of motion. Number 1, spring balance. Number 1, spring balance. ओके, तो देखो बेटे, स्प्रिंग बैलेंस में होता क्या है? एक स्प्रिंग होता है ऐसे ना। ओके, स्प्रिंग के साथ हम कोई ना कोई बॉडी अटैच करते हैं, चाहे ऐसे बॉडी को अटैच करते हैं, तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है ना। ओके, तो इस बॉडी का जो वेट हुआ दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्शन। और स्प्रिंग के बीच में एक फोर्स डेवलप होती है जो इसको ऊपर खींचेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन और दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, और उसको आप रिएक्शन भी कह सकते हो। ओके, और जब एक्शन और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका वेट आ जाएगा, कितना वेट है। ओके, यस। नंबर 2 बेटा जी, राइट डाउन। when a bullet is fired
from a gun. When a bullet is fired from a gun, the gun recoils or move in backward direction and moves in backward direction. Number 3, while swimming, the swimmer exerts a force. On water. At the same time, water also exerts force on the swimmer, and both the forces are equal in magnitude. And opposite in direction. Next number 3 number. सर both the forces R के बाद क्या repeat कर दो? Both the forces are equal in magnitude and opposite in direction.